Okay, so now we can take example. Okay, so now the degree of amine. We'll discuss about the amines, type of amines, what is the order of basic character. So first first I will tell you the order of basic character is always aliphatic amine. Okay, all aliphatic amines. So what is the order of aliphatic amine? Stronger base, then ammonia, then aromatic amine. So this is the order of basic character. Okay. Now the question is why? Why aliphatic amine stronger base than ammonia than aromatic amine? Because now we will discuss about the some basic electronic effect character. Okay. So aromatic amine less basic, and or we can say aliphatic amine more basic because of alkyl group. Okay, and all of you know this alkyl is electron donating group, or which shows which effect, plus I effect. Okay, which shows plus I effect, and all of you know as plus I effect, that is electron donating alkyl group as plus I effect, that is electron donating alkyl group increases basic character also increases. Again repeating, clear ho gaya? As plus I effect increases, basic character increases. Okay. So, and why plus I effect increase the basic character? That reason is, what is the reason for that? And that is because number one, okay, why amines are base? Amines are base because of presence of lone pair. Okay, and if lone pair is more and more, means if electron density more and more basic character. Okay, so simply what you see, as alkyl group increases, alkyl is the electron donating group. Okay, so this is electron donating group. जितना ज्यादा R group आएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा नाइट्रोजन पे, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी. एंड एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, उतना ही वो जल्दी से किसी भी प्रोटॉन को डोनेट करके उससे प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा. मींस नाइट्रोजन इज बेसिक इन कैरेक्टर ड्यू टू लोन पेयर ज्यादा होना चाहिए, डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए. तो आर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और आर भी इसको डोनेट कर रहा है. डोनेट मीन्स इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है. तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही इंक्रीज करेगा, एंड बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. तो प्लस आई इफेक्ट से बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होने का रीजन है बिकॉज इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी over nitrogen atom, and hence protonation tendency increases or proton acceptance tendency increases. Okay, so this is the reason. Now the second reason is, okay, suppose this is the first reason, okay, what I discussed over here. What is the second? Why plus I effect increases? First is a density, electron density increases, and secondly the, okay, suppose R is, okay, R NH2, suppose I'm taking this, okay, it is electron donating group. Okay, it is base का मतलब क्या है? It will accept H plus. ठीक है, so now it will accept H plus, it form RNH3 positive. Okay, okay, अगर ये base है, if it is base, if amine is base, तो ये इसका क्या होगा? Conjugate acid. और आपको पता है कॉन्जुगेट शुड बी मोर एंड मोर स्टेबल. जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना ही ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा. ठीक है, एंड दिस कॉन्जुगेट की जो स्टेबिलिटी है वो भी आर पे डिपेंड कर रहा है.
N हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड R तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो जितना ज्यादा तुम्हारा R ग्रुप इंक्रीज करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होता जाएगा और ये उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो व्हाट इज द रीजन फॉर प्लस आई इफेक्ट? पहला है कि प्लस आई इफेक्ट से एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है जिससे बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, एंड सेकेंडली जो कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म होता है, द कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म्ड मोर स्टेबलाइज। तो अगर आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आता है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, तो ये बेसिक पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि एज एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, एंड ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एंड also the conjugate ion formed is more stable. I hope it is clear to all of you. Yes, ma'am. ठीक है, तो इससे तुम क्या करोगे, हम अभी तुम्हें आपको एग्जांपल देते हैं सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, सीधा आते हैं, पहले एलिफैटिक अमीन की बात करते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर नाउ। एलिफैटिक एलिफैटिक अमीन्स, ओके। एलिफैटिक अमीन्स में तुम्हारा क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। What is the order of basic character? Now you can see, okay. Now we can discuss in two terms. First, in gas phase, or we can say in dry phase, means not aqueous, okay. In gas phase, the order is always tertiary amine, more basic, then secondary amine, then primary amine, then of course ammonia, and then aromatic amine, okay. So this is the order of basic character in gas phase. Tertiary aliphatic amine, I mean aliphatic. Okay, all aliphatic amines, all these three are aliphatic amines, okay. So in aliphatic amines, the order is tertiary, secondary and primary. Reason is very much clear to all of you. Just we have discussed why the tertiary amine is more basic. In tertiary amine, how many alkyl groups are there? Primary में कितने alkyl group है? 1. Secondary में 2. And tertiary में how many alkyl groups are there? 3. So we have discussed how many electron donating group? 1, 2, 3. यहाँ पे सिर्फ एक ही है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, राइट। यहाँ सिर्फ एक ही डोनेट कर रहा है। यहाँ पे कितनी डोनेटिंग हो गई? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया बिकॉज 3R ग्रुप्स आर गिविंग डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा होता है, दिस इज द रीजन कि गैस फेज में टर्शियरी अमीन जो होता है वो ज्यादा बेसिक है rather than secondary amine, rather than primary amine, because of increase of R group, and R group is nothing but which effect? It's showing which effect? Plus I effect. So I hope it is clear. इसका एक ही रीजन है, because why the basic character increases in this order? Because of increase of which effect? जल्दी बोलो बच्चे। Increase of Plus effect. plus effect. And due to increase of plus effect, the reason already I have written at the back page, previous page, कि जितना ज़्यादा plus effect बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और इसका जो कॉन्जुगेट आयन, जो पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा वो भी ज़्यादा का ज़्यादा क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। ठीक है, ओके। एंड सेकेंड इज ओके, और इससे कम तुम्हारा बेसिक अमोनिया क्यों है? वाई अमोनिया इज लेस बेसिक देन दिस? बिकॉज अमोनिया देयर इज अ नो एनी आर ग्रुप, कोई प्लस इफेक्ट नहीं है। और तुम्हारा सबसे कम होगा एरोमेटिक अमीन, बिकॉज एरोमेटिक में बेंजीन इज व्हाट, प्लस इफेक्ट की माइनस इफेक्ट? माइनस इफेक्ट, ओके। तो जो बेसिक कैरेक्टर है एंड सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो, तो जो बेसिक कैरेक्टर होता है किसी के लिए भी वो तुम्हारा प्लस इफेक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एंड माइनस इफेक्ट का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप याद रखते हो तो यू कैन सॉल्व द एनी छोटे छोटे क्वेश्चंस।
ठीक है. Okay. Now this is in gas phase. Remember, I have just written only the dry phase, gas phase. एलिफैटिक अमीन का जो हमने बेसिक कैरेक्टर डिस्कस किया है वो सिर्फ गैस फेज में डिस्कस किया अभी तक, ठीक है. बट व्हेन वी डिस्कस इन द एक्वस फेज इट विल बी नॉट सेम. ओके, द सेकंड इज इन एक्वस फेज. ठीक है, अब हम एक्वस फेज की जब बात करते हैं, so now what is the order of basic character in aqueous phase? Anybody can tell? Ma'am, 2 degree greater than 1 degree greater than 3 degree. क्या बोला तुमने, दोबारा से बोलना बच्चे. Ma'am, 2 degree greater than 1 degree greater than 3 degree. And ma'am, after that NH3 and then then 2 aniline. degree, 3 degree, 1 degree, then of course ammonia, and then aromatic amine, right? Correct. Yes, ma'am. तुमने ये बोला था कि कुछ और बोला था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है. मैम यही बोला था. बट तुमने, मुझे लग रहा है ये भी बोला था शायद, दिस वन आल्सो. यस मैम, ये भी बोल रहा था क्योंकि मैम जब ये अर्चित बोल रहे हो क्या? यस मैम. यानी तुमने मुझे दो तरह का ऑर्डर बताया, एक तो तुमने ये बताया और एक तो तुमने ये बताया, ठीक है, और दोनों ही करेक्ट है. ज्यादा जो फिजिबिलिटी होता है वो ये होता है, ठीक है. तो जब हम एक्वस फेज की बात करते हैं तो 231 होता है या 213 होता है, ठीक है. 231, तो यहाँ पे दोनों केस में एक चीज तुम्हें कॉमन दिख रहा है कि 2 डिग्री जो होता है वो हायर बेसिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है. इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ प्लस आई इफेक्ट मैटर नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कुछ और इफेक्ट्स भी आ गए. प्लस आई इफेक्ट तो है ही है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट तो रहेगा ही ऑलवेज, लेकिन एक और इफेक्ट आ गया होगा, क्योंकि एक्वस जब बोलते हो तो एक्वस में तुम्हारा वाटर इफेक्ट आ जाता है. एक्वस का मतलब वाटर, वाटर इफेक्ट कह सकते हो या सॉल्वेशन इफेक्ट कह सकते हो या हाइड्रेशन इफेक्ट कह सकते हो, ठीक है. इट मीन्स द ऑर्डर इज नाउ नॉट द सेम एज इट वाज इन एक्वस गैस फेज एंड द ऑर्डर इज चेंज बिकॉज. तो ये ऑर्डर होने का क्या रीजन है, व्हाई दिस ऑर्डर, बिकॉज ऑफ द रीजन इज व्हाट. Okay, now the order is this because of few reasons. The first reason is plus I effect, that is a common, that will be always present. And as plus I effect increases, basic character increases, so according to plus I effect the order will be what, 3 2 1. ठीक है. अब ये ऑर्डर होने के क्या क्या रीजन है. पहला प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग टू 3 2 1 एंड अमोनिया देन अमीन्स, ठीक है. But another reasons are also there, that is a solvation effect, or we can say hydration effect. Solvation effect में भी यही होता है. प्लस आई इफेक्ट का क्या होता है, एज प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस बेसिक इंक्रीजेस, तो ऑर्डर इज दिस. Solvation effect also same thing, as solvation effect increases basic character also increases, okay. And solvation effect is nothing but hydration effect, we can say hydration effect. And hydration is nothing but hydrogen hydration energy. Hydration energy means hydrogen bond, ठीक है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सॉल्वेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा किस में होगा, 1 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा. वाई, इट विल बी मैक्सिमम इन 1 डिग्री. नाउ यू कैन सी, जैसे मैं यहाँ पे तुम लोग को दिखा भी सकती हूँ. Because of more H bonding. ठीक है. नाउ यू कैन सी ओवर हियर. सॉल्वेशन इफेक्ट यू कैन सी कि सबसे ज्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट किस में ज्यादा हो रहा है, दैट इज प्राइमरी अमीन ले लो पहले. दिस इज प्राइमरी अमीन, ठीक है. प्राइमरी अमीन जब ये तुम्हारा H प्लस एक्सेप्ट करता है तो इट कन्वर्ट इनटू अमोनियम सॉल्ट R NH3 प्लस, ठीक है.
अब यहाँ देखो हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये भी हाइड्रोजन वाटर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, दिस आल्सो फॉर्म, दिस आल्सो फॉर्म, ठीक है। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 3 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी जितना ज्यादा रिलीज होगा उतना ज्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट होगा, उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। तो तुम देख रहे हो कि प्राइमरी अमीन में तुम्हारे 3 सॉल्वेशन इफेक्ट आ रहे हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, 3 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3। So there is a more hydrogen bond form, more hydration energy and more solvation effect and more basic character, ठीक है। ये हमने प्राइमरी अमीन की बात की, ठीक है, क्योंकि एक ही आर ग्रुप है, बाकी हाइड्रोजन है। बट अगर सेकेंडरी होगा तो यहाँ पे एक एच की जगह एक एच कम हो जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी अमीन की बात करें तो इस एच की जगह आर ग्रुप आ जाएगा, तो ये बॉन्ड कम हो जाएगा, 2 ही बनेंगे। टर्शी में एक और एच कम हो जाएगा, ठीक है, वहां भी आर आ जाएगा, तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो यहीं से तुम्हें क्लियर हो गया कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर फॉर सॉल्वेशन इफेक्ट। क्या दिख रहा है आपको? अब सॉल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर? सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर क्या शो करेगा, 1 2 3। सो सॉल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग द प्राइमरी अमीन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी अमीन, क्योंकि प्राइमरी अमीन में सबसे ज्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट है, क्योंकि प्राइमरी अमीन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, सेकेंडरी में सिर्फ 2 बनेगा, टर्शियरी में सिर्फ 1 बनेगा। तो प्राइमरी में सबसे ज्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। एक और इफेक्ट है जो कि बहुत छोटा इफेक्ट है, बट वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, बस 2 मिनट हमें टाइम लगेगा। व्हाट इज द टाइम नाउ? ठीक है, बस 2 मिनट्स मोर। एंड नाउ लास्ट इज अ स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस जब भी हम वर्ड लेते हैं तो हमेशा हमें नेगेटिव ही लगता है कि जितना ज्यादा हिंड्रेंस होगा उतना इफेक्ट कम हो जाएगा। तो एज स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ठीक है। तो आप बताओ सबसे ज्यादा हिंड्रेंस किस में आपको दिख रहा है? 3 सबसे डिग्री में मैम। 3 डिग्री में आपको देख रहा है, 3 में बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है, तो ऑब्वियस है अगर स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर को हम लेते हैं तो हम उल्टा कहते हैं कि 3 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री अगेंस्ट ज्यादा होगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिर इफेक्ट कम हो गया, ठीक है। मैं एक बार ना इसको थोड़ा सा, यानी जब तुम तीनों इफेक्ट को कंबाइन कर तो तुमने 3 इफेक्ट देखा, प्लस आई इफेक्ट देखा, प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारा ऑर्डर क्या था, 3 2 1, ठीक है। दूसरा इफेक्ट था तुम्हारा सॉल्वेशन इफेक्ट था, सॉल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग व्हाट इज द ऑर्डर नाउ, उल्टा हो गया, 1 2 3, ठीक है। और एक तुम्हारा थर्ड इफेक्ट था स्टेरिक इफेक्ट था, स्टेरिक हिंड्रेंस कह सकते हो या स्टेरिक इफेक्ट लिख देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग भी तुम्हारा क्या हो गया, 1 2 3। तो तुम्हारे पास ये 3 इफेक्ट है, 3 रीजंस हैं। इन तीनों रीजंस में तुम्हें कॉमन क्या दिख रहा है कि कौन सा अपने पोजीशन को मेंटेन करके रखा हुआ है, 2 डिग्री हमेशा बीच में है, तो जो अपने पोजीशन को मेंटेन करके रखा हुआ वो सबसे ज्यादा बेसिक हो गया, ठीक है। तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक हो गया, बचा तुम्हारा 3 और 1। अब इसमें कंपटीशन है, 3 तुम्हारा 1 टाइम ज्यादा है, जबकि 1 जो तुम्हारा प्राइमरी अमीन है 2 टाइम्स ज्यादा है। तो तुम्हें लग रहा है कि प्राइमरी अमीन को ज्यादा बेसिक होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये टर्शी एक ही बार ज्यादा अपने कैरेक्टर को शो कर रहा है, बेसिक कैरेक्टर को ज्यादा शो कर रहा है, प्राइमरी 2 बार 2 इफेक्ट को ज्यादा शो कर रहा है, स्टिल टर्शी अमीन जो होता है वो ज्यादा बेसिक होता है रेदर देन प्राइमरी अमीन, बिकॉज इन तीनों इफेक्ट में जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है वो प्लस साइड इफेक्ट होता है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे तुम्हारा ना स्टेरिक इफेक्ट क्लास टेस्ट है, ठीक है। सपोज हमने क्लास टेस्ट तुम्हारा 20 मार्क्स का लिया, ठीक है। ये तुम्हारा सॉल्वेशन इफेक्ट तुम्हारा यूटी है जो तुम्हारे 35 मार्क्स का टेस्ट लेते हैं, ठीक है। और ये जो तुम्हारा है प्लस आई इफेक्ट है, मिड टर्म कह सकते हो या फाइनल एग्जाम कह सकते हो, जो कि तुम्हारा 70 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। तो जैसे क्लास में हमने सबसे पहले छोटा टेस्ट लिया 20 मार्क्स का, एक बच्चा फर्स्ट आया, ठीक है। सेकेंड टाइम में हमने यूटी लिया, वही बच्चा फिर से फर्स्ट आया, और यही ऑर्डर रहा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का वही ऑर्डर रहा। बट जब मिड टर्म एग्जाम है तो जो बच्चा थर्ड आ रहा था 2 टाइम से वो सीधा हाईएस्ट मार्क्स लेके आ गया, ठीक है। और जब तीनों का एवरेज हम निकाल रहे हैं तो तीनों के एवरेज में तुम्हारा जो सेकंड बार बार आ रहा है उसका सबसे ज्यादा एवरेज हो जाता है, तो वो अब फर्स्ट हो गया। लेकिन जो 70 मार्क्स में जो बच्चा ज्यादा नंबर लेके आया रेदर देन तुम्हारे 2 छोटे छोटे एग्जाम में, उसका मार्क्स इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा हो गया, इसीलिए थर्ड तुम्हारा सेकंड पोजीशन पे चला गया और फर्स्ट जो है लास्ट पोजीशन पे चला गया।
तो दिस इज द रीजन कि इन गैस फेज द ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर इज दिस, ठीक है, ऑलवेज 2 3 1, एक्सेप्ट, एक सेकेंड, एक्सेप्ट एक बार तुमने ये बोला है कि मैम ये 2, वैसे ऑलवेज यही होता है 2 3 1, लेकिन ये 2 1 3 किस केस में होता है? सिर्फ मिथाइल अमीन के केस में होता है। मिथाइल अमीन के केस में क्या होता है कि डाइमिथाइल अमीन तुम्हारा सबसे ज्यादा सेकेंडरी हो तो ज्यादा होगा ही, लेकिन यहाँ पे 3 डिग्री से ज्यादा जो बेसिक होता है वो तुम्हारा 1 डिग्री हो गया। और यहाँ क्या रीजन है कि तुम्हारा टर्शी अमीन जो है तुम्हारे प्राइमरी अमीन से कम बेसिक हो गया है, और प्राइमरी, तो इसका रीजन है कि जो मिथाइल ग्रुप होता है उसमें एक ही कार्बन होता है, बहुत ही स्मॉल, इसका प्लस इफेक्ट बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत डोमिनेटिंग नहीं होता। इसके केस में तुम्हारा 70 मार्क्स का पेपर ही नहीं हुआ, 20 35 35 हो गया, ठीक है, वो कहने का मतलब है। तो अब, और जो कि ये वाला जो है, जो फर्स्ट केस है वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। अगर तुम इथाइल ग्रुप लेते हो तो इथाइल ग्रुप के केस में सेकेंडरी ज्यादा बेसिक होगा, फिर तुम्हारा टर्शी ज्यादा बेसिक होगा, एंड तब तुम्हारा प्राइमरी होगा, क्योंकि 2 कार्बन के केस में तुम्हारा एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस प्लस इफेक्ट इंक्रीजेस, तो यहाँ प्लस इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, इसलिए 3 डिग्री ज्यादा है यहाँ पे। जबकि मिथाइल के केस में CH3 हैज वेरी लेस प्लस इफेक्ट, CH3 ग्रुप हैज लेस प्लस इफेक्ट। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एंड ड्यू टू लेस, इसका अगर प्लस इफेक्ट लेस हो गया तो सॉल्वेशन इफेक्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, एंड दिस इज द रीजन कि यहाँ पे ये है। तो ये दोनों केसेस बच्चे याद रखना, ये तुम्हारा एक्सेप्शन में आ जाता है, ठीक है, इसको याद रखना। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बोलो यस और नो। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, तो तुम्हारा बस यहाँ पे यही होना चाहिए। अब मैं बाइंड अप कर रही हूँ, ये सबके लिए होता है, और एक्सेप्शन के लिए तुम्हारा एक ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, चलो ओके, ठीक है बच्चे, ओके, यस मैम, Yes, ma'am. थैंक यू मैम। ओके बेटे। एक बात बोलो इसमें,